Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. So, as we were discussing practice questions of manufacturing account, we did 5 questions, and in all those 5 questions, we had to prepare a manufacturing account, either trading account and or income statement completely. I'll be doing a few more questions in this video, and then I will be doing a few more questions in another video so that you are completely well versed with the topic of manufacturing. So it's a series of 3 videos of practice questions. We are done with the first video. I'm beginning with the second video. Please open up question number 18 of your practice booklet, manufacturing accounts. The question says, Nolin Saga owns a small manufacturing business. The following balances were taken from the books on 30th June 1996. Inventory, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी हुई है आपको, कैरेज ऑन सेल्स दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है, फैक्ट्री वेजेस दी हुई हैं, बैड डेट्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल, सेल्स ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन ऑफ नोलिन सागाज मोटर कार. ये जो डेप्रीसिएशन ऑफ नोलिन सागाज मोटर कार है, ये ना इनकम स्टेटमेंट में आएगी ना ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगी, क्योंकि ये नोलिन सागा की पर्सनल गाड़ी है, इसका हमारे बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है. फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंस एंड सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स. कह रहे हैं सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट बैलेंसेज एंड प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर. सो यू हैव टू प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड द इनकम स्टेटमेंट. सो लेट्स डू द नीडफुल. Let's prepare the manufacturing account. Manufacturing account for the year ended 30th June 1996. Cost of raw material consumed. Opening inventory of raw material. Opening inventory of raw material is 20,400. Purchase of raw material. Are there any purchase returns of raw material? No. 156500. 156500. Carriage on raw material. Carriage on raw material is 2800. So 20,400 plus 156500 plus 2800 is 179700. That is cost of raw material available for use less closing inventory, obviously of raw material. So closing inventory of raw material is 18800. 18800. 179700 minus 18800 is 160900. This is cost of raw material consumed. You have to add direct costs, and direct costs में फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3600 के, फैक्ट्री वेजेस 88,000 की. फैक्ट्री वेजेस 88,000. फैक्ट्री डायरेक्ट expenses. Factory direct expenses 3600.
So 88,000 plus 3,600 is 91600 plus 160 900 is 252500, which is prime cost. Add factory overheads. फैक्ट्री ओवरहेड्स में जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स. So the general factory overheads are 26600, 26600, and then there is बैड डेट्स नहीं आएगा, ये सेलिंग एक्सपेंस है. सेल्स ऑफिस एक्सपेंस नहीं आएगा. डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट आएगा. डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, depreciation of factory equipment is 12400. कोई सुपरवाइजर सैलरी दी हुई है? नन दैट आई कैन फाइंड. कोई और फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं? कोई नहीं मिल रहे. सो दैट इज इट. इसका टोटल करें. 26600 प्लस 12400, दैट इज 39,000 plus 252500, that is 291500, and this is cost of production. Is there any WIP in this question? No, there is no WIP in this question. कोई work in progress नहीं है. ठीक है जी. So this is the amount that will be transferred to income statement. Then you need to prepare income statement. You have to prepare income statement for the year ended 30th June 96. Sales are 350,000 less cost of sales. Opening inventory is किस चीज़ की? फिनिश गुड्स की. 25,000. ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स 25,000. ट्रांसफर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. Transfer from manufacturing account is 291500, 291500. कोई परचेजेस तो नहीं है? कोई परचेजेस नहीं है. सो 291500, so 25,000 plus 291500, that is 316500. This is cost of goods available for sale less closing inventory of finished goods. So closing inventory of finished goods is 26200, 26200 minus 26200 will give you 290,300. So gross profit is 350,000 minus 290,300 is 59700. Less expenses because there are no other incomes.
एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? कैरेज ऑन सेल्स है सबसे पहले, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स 3800, उसके बाद बैड डेट 600, कैरेज ऑन सेल्स 3800, बैड डेट्स 600, उसके बाद हमारे पास सेल्स ऑफिस एक्सपेंस 7800, सेल्स ऑफिस एक्सपेंस 7800. प्लीज़ चेक करें कोई और एक्सपेंस है. इज देर एनी अदर एक्सपेंस? नन दैट वी कैन फाइंड. डेप्रिसिएशन ऑफ नोलिन सागास मोटर कार नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये नोलिन सागा का प्राइवेट एक्सपेंस है. 3800 प्लस 600 प्लस 7800 is 12200. So 59700 minus 12200, that is 47500 is the net profit. I hope this is clear. Profit for the year भी बोल सकते हैं आप. I hope this is very clear. The reason that we did this question but for the other two parts. It says that assume that Saga's present sales volume is 5000 units. If the selling price were to increase by 10%, the number of units sold will decrease by 5%. Then what would be the amount taken in sales? अभी सेल्स कितनी है? सेल्स है 350,000. यूनिट्स कितने हैं? 5000. सो 350,000 डिवाइड बाय 5000 कितना हो गया? 350,000 divided by 5,000 is $70 per यूनिट. अब क्वेश्चन बोलता है कि अगर सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दो, 70 को अगर 10% बढ़ा देंगे तो 110% हो जाएगी. तो 70 का 110% इज 77. तो नई सेलिंग प्राइस 77 हो जाएगी. और कह रहा है कि द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड विल डिक्रीज बाय 5%. यूनिट्स अभी हैं 5000, अगर 5% कम हो जाएंगे तो 95% हो जाएंगे. सो 5000 इंटू 95% इज 4750. सेलिंग प्राइस हो जाएगी ये, यूनिट्स हो जाएंगे ये, तो सेल्स कितनी हो जाएगी? 77 इंटू 4750, दैट इज 365,750. समझ में आई बात? द क्वेश्चन स्टेट्स दैट कि अगर आपका सेल्स वॉल्यूम 5000 यूनिट्स है, आपकी सेल्स कितनी है? सेल्स ये रही 350,000. सेल्स 350,000 है, सेल्स यूनिट्स 5000 है. सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? सेलिंग प्राइस इज टोटल सेल्स अपॉन आउटपुट, दैट इज 70 पर यूनिट. कह रहा है सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%. अगर सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज कर रही है तो सेलिंग प्राइस 70 इंटू 110% 77 हो जाएगी. एंड नंबर ऑफ यूनिट्स विल डिक्रीज बाय 5%. नंबर ऑफ यूनिट्स 5000 है, 5000 5% से डिक्रीज होंगे तो 95% हो जाएंगे, 4750. सेल्स कितनी हो जाएगी? 77 इंटू 4750 इज 365,750. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसके बाद अगले पार्ट में बोलता है Nolin Saga is considering her accountant's suggestion that the cost of goods manufactured is transferred from manufacturing cost at cost plus 10%. If she did this, how could it help her to run the business? कह रहा है कि इसका अकाउंटेंट सजेस्ट कर रहा है कि जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना हम ये वाली प्राइस इस पे 10% चार्ज करें और फिर ट्रांसफ़र करें, तो इससे फ़ायदा क्या होगा ये पूछ रहे हैं. सो इफ द ट्रांसफर प्राइस इज कॉस्ट प्लस 10%, it will enable the business to identify the profit from manufacturing separately
which will be 10% of cost of production, and trading profit will be calculated separately, as cost of production will increase. Cost of production transferred to income statement will increase. This will help the business in realizing which department is performing better, trading department or मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. ट्रेडिंग डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है. समझ में आई बात. इफ द ट्रांसफर प्राइस इज कॉस्ट प्लस 10%, इट विल इनेबल द बिजनेस to identify the profit from manufacturing separately, which will be 10% of the cost of production, and trading profit will be calculated separately as cost of production transferred through income statement will increase. उससे दोनों डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अलग अलग आइडेंटिफाई हो सकेंगी कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा कमा के दे रहा है या ट्रेडिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा कमा के दे रहा है. और ऐसा नहीं होगा कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में चला जाएगा. दोनों की अलग अलग परफॉर्मेंस डिटर्मिन होगी. आई होप दिस इज क्लियर. This is question number 22, and in this question the requirement is to prepare income statement and statement of financial position. So इस सवाल में अब आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाना है. मैन्युफैक्चरिंग का सवाल, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको ऑलरेडी निकाल के दी हुई है इस सवाल के अंदर, और आपसे बोल रहा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट यूज़ करते हुए, ये देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पहले से दी हुई है. आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाना, आपने इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है. एंड इन ऑर्डर टू डू सो यू हैव टू टेक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अंडर कंसिडरेशन. नंबर 1, depreciation of plant and machinery 3300 has already been charged in the manufacturing account. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हुई हुई है. यानी ये जो 18700 है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है. डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स इज 85. सो वर्किंग 1 is already accounted for. Working 2, depreciation of fixtures and fittings is 85. So this will go to the income statement as well as statement of financial position. Working 3, a debt of 200 is to be written off as irrecoverable. Receivables कितने हैं भाई? Receivables आपको दिए में 8300 less bad debts 200, 8100 is net debts. Are you all with me? Provision for bad debt is 5%. 8100 into 5 divided by 100 is 405. Previous provision जो दिया हुआ है bad debts का वो 380 है. 25 is increase in provision. ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा एज एक्सपेंस, और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड वर्किंग 5 में आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री बताई हुई है 6940, दैट इज इट. सो दिस इज ऑल from the workings. Now it is time to prepare the income statement.
income statement for the year ended 31st December 1981. Sales of finished goods. Sales of finished goods is 89600. 89600 less cost of sales. Opening inventory. Opening inventory of finished goods is 7520. Opening inventory of finished goods is 7520. Transfers from manufacturing account. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज 73060. इसमें कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज़ ले लेंगे 73060. इनको ऐड किया 73060 प्लस 7520, दैट इज 80580. दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स available for sale less closing inventory of finished goods. Closing inventory of finished goods is 6940. 6940 less 6940 is 73640. 89600 minus 73640 is 15960 is the gross profit. Are there other incomes? Please look carefully. Okay, there is a slight problem in the question. I'll make the amendment. This is work in progress. This is inventory of work in progress 7520. This is the inventory of finished goods. At opening inventory of finished goods is 7580. So 6580 is opening inventory. There is a slight problem. I'll just sort it out. 6580. This is the opening inventory of finished goods, and inventory at 31st December. Raw material is 5960. Work in progress is 7520. And finished goods की closing inventory is 6940, which is given here. So I will have to do the calculations again. 6580 plus 73060 is 79640. 79640 minus 6940 is 72700, and 89600 minus 72700 is 16900. This is the gross profit. I'm sorry, there is some kind of a misprint here, and what relevant that seems to be is, देखें हर दफ़ा फिनिश इन्वेंट्री दी हुई है क्लोजिंग, ये रॉ मटेरियल है अगर, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस होगा, क्योंकि फिनिश गुड्स की क्लोजिंग तो ये दी हुई और ये ओपनिंग दी हुई है फिनिश गुड्स. सो आई थिंक दिस नीड्स टू बी एडजस्टेड. देन हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है. ग्रॉस प्रॉफिट इज 16900. प्लीज चेक आर देयर एनी अदर इनकम्स. फैक्ट्री वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये अक्रूवल्स में आएंगी, क्योंकि
फैक्ट्री वेजेस में तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट होंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में. ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, पेबल्स, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कैश एट बैंक, ड्रॉइंग्स, कैपिटल. कोई अदर इनकम्स नहीं है. लेस एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस? वो वाले जो सेलिंग से रिलेटेड है. सो सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या क्या हैं? ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस 4760 ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस. देन selling expense 7340 is the selling expense. And is there any other expense? All right, depreciation of fixtures and fittings 85. Depreciation of fixtures and fittings is 85. ठीक है. बैड डेट्स आर 200. बैड डेट्स आर 200. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज 25. Any other adjustment? There is no other adjustment. Are there any other expenses? Please check. ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेट हो गया, सेलिंग एक्सपेंस इनकॉर्पोरेट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हुआ हुआ है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, सब चीज़ इनकॉर्पोरेट हो गई. टोटल बताइए. 4760, 7340, 85, 225. 12410. 4760, 7340, 85, 225. 12410. 16900 minus 12410, 4490 is the profit for the year. Net profit. Now it is time to prepare statement of financial position. Statement of financial position as at 31st December 1981. Non-current assets, cost, depreciation, net book value. freehold premises, freehold premises पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है. 24,000. प्लांट एंड मशीनरी आपको आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया है 18700 और डेप्रिसिएशन बोला हुआ है 3300 है. तो 18700 प्लस 3300, 18700 plus 3300 is 22,000. 3300 is the depreciation, 18700 is the net book value. Then fixtures and fittings. फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स आपको दिया है या फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो भी है 880 और उसका डेप्रिसिएशन इज 85. 880 डेप्रिसिएशन इज 85. 880 minus 85 is 795. 24,000 plus 18700 plus 795, that is
43495. करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, कौन सी क्लोजिंग, लेकिन कौन सी, तीनों की क्लोजिंग इन्वेंट्री 5960, 7520 और 6940. 5960, 7520 and 6940. 6940. 5960, 7520, 6940. 20420. Net receivables. Net receivables are 8300 minus 200, 8100. Net receivables are 8100. Provision for bad debts. Provision for bad debts are 405. सब फॉलो कर रहे हैं, आई होप. 405. 8100 minus 405 is 7695. Are there any prepayments? कोई प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट है? नहीं है. आर देयर एनी अक्रूवल्स? एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन फैक्ट्री वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो ये अक्रूवल्स होंगी, क्योंकि फैक्ट्री वेजेस ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ चुकी है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है, मतलब अक्रूवल्स है. कितनी है अक्रूवल्स? 340. तो करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे उसको. सो देयर आर नो प्रीपेमेंट्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं? 7780. 7780. 7780. So 20420, 7695, 7780, 35895 plus 43495, 79390 are the total assets. Equity and liabilities. Equity, capital 67960. 67960. Add net profit 4490. 4490. 67960 plus 4490, 72450 less drawings. Drawings are 4000. Less drawings 4000 minus 4000 is 68450. Current liabilities, payables. Payables are 10,600. Accruals are 340. Accruals are 340. So this is 10600 plus 340, that is 10940 plus 68450 is 79390. ऊपर क्या था? 79390. And I have to feel like the king of the world. I hope this is clear to all of you. I hope सबको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने ये सवाल किया, जिसमें हमें इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी थी
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाना था, थोड़ा सा मिसप्रिंट था क्वेश्चन में। ये जो इन्वेंट्री दी हुई है ये रॉ मटेरियल की क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग दी हुई है, फिनिश गुड्स की नहीं दी हुई, क्योंकि फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इस वाली एंट्री में दी हुई है। दिस इज क्लोजिंग फिनिश गुड्स, दिस इज क्लोजिंग रॉ मटेरियल, दिस इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड दिस इज ओपनिंग फिनिश गुड्स। डेट से देख के हमें अंदाजा हो गया। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस वॉज द सेकेंड पार्ट इन द 3 practice question series of manufacturing accounts. In the next video, I will be doing just one practice question and in that practice question, the question will require me to prepare manufacturing account, income statement, statement of financial position, पूरा सब कुछ। ऑल्दो वो जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ वो 40 मार्क क्वेश्चन है, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा।